Hello students, welcome back to ISR Academy. This module we are talking about the next part of the chapter which we started in the previous module. The name of the chapter was control and coordination. इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाता है दैट इज़ द नर्वस सिस्टम. Previous modules mein we talked about the neurons, then how the transmission of the nerve impulse occurs, different types of supporting cells of the nervous system, and all of those basic things which are very, very important for you to really have a glance at before you really start with this module. So students, let's begin and talk about the human nervous system. Now students, when we talk about the human nervous system, we must understand that the complex system of neurons and along with the complex system of different kinds of functions that we have is vastly divided into three types. So our nervous system, when we talk exclusively about our nervous system basically divides itself into two parts. Majorly, when we talk about the central nervous system, okay, the central nervous system. The second is the peripheral nervous system. Okay, and then you have the third component, which is the part of the peripheral only, but we are writing it separately, which is called as autonomic nervous system. So you have three different components, of which the CNS or the central nervous system is one of the most important components of the nervous system. Then you have the peripheral nervous system, which is again the second most important part. And then you have the autonomic nervous system, which is the third component of the nervous system. ठीक है, तो आपके पास CNS है, PNS है और ANS है. When we talk about categorically about each and every systems together, so मान लो कि मैंने सबसे पहले CNS के बारे में बात करना है. CNS जो होता है CNS, it is mainly briefly made up of two important organs, one being the brain, okay, one being the brain, another being the spinal cord. These are the two components inside the central nervous system. Then when we talk about the peripheral nervous system comprises of two important nerves or group of neurons, one being cranial nerves and another being the spinal nerves. Okay, students? Then we have something called as ANS. ANS mein we have one important component is something called as sympathetic nervous system. Okay. Then you have with what is called as parasympathetic nervous system. Okay, so we have CNS, we have PNS and then we have the ANS. हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर we will try and cover up CNS. उसमें का ब्रेन अपन ब्रीफली डिस्कस करने का पूरा ट्राई करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर. मेजॉरिटी पार्ट ब्रेन का जो रहेगा वो अपन इस मॉड्यूल में खत्म कर देंगे. ठीक है, सो अभी के लिए बढ़ जाते हैं फटाक से. स्टार्टिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ दैट इज द लेयर्स ऑफ द ब्रेन. बिकॉज कैटेगोरिकली जब आप बात करते हैं तो ये तो तीन डिस्ट्रीब्यूशंस तो रहे, मगर एक चीज आपको समझना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन जो होता है ब्रेन, इट इज सराउंडेड, ओके, इट इज सराउंडेड बाय complex of layers. Okay, a complex of layers. And when we talk about these layers in collective are called as meninges. इनको अगर आप layers को combine कर देंगे तो जो बनेगा वो meninges होता है. ये meninges जो होता है guys, this meninges is divisible. Okay, it is divisible into three layers. Total of three layers you have, of which the very first being dura matter. Okay, the second being the arachnoid matter. Okay, the third being the pia matter. Okay, so you have the dura matter,
you have the arachnoid matter and then you have the pia matter, 3 different layers and collectively अपन ने उनको क्या बोल दिया है, we have called it as meninges. तो meninges है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक. तो meninges है, 3 लेयर से बना हुआ है, तीनों लेयर्स को अपने को डिटेल में अभी डिस्कस करना है. तो चलिए फटाक से मुड़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द लेयर्स. सबसे पहला बात करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट, विच इज द ड्यूरा मैटर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर, ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ड्यूरा मैटर, देखो देखो, ड्यूरा मैटर इज दिस. उसके ऊपर यू हैव द स्कल ना, ऑब्वियसली यू हैव स्कल. स्कल के बाहर देन यू हैव द स्किन, स्कैल्प जो होता है, तो स्कैल्प है. देन यू हैव क्रेनियम, क्रेनियम विच इज स्कल, एंड स्कल के जस्ट सबसे पहला वाला जो लेयर आने वाला है, दैट विल बी योर ड्यूरा मैटर. सो मेनिंजेस के केस में ड्यूरा मैटर जो होता है, ड्यूरा मैटर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. ओके, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. एंड खास बात क्या पता है, ड्यूरा मैटर इज वेरी थिक. इट इज वेरी थिक, एंड बिकॉज इट इज थिक इन नेचर, इसका सबसे प्रायोरिटी फंक्शन विल बी प्रोटेक्शन. So dura matter in general is basically protective in nature. Protective मतलब क्या, ब्रेन को मैकेनिकल शॉक्स हो सकता है, देन अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट अगर पड़ते हैं ब्रेन के ऊपर, तो उसका एब्जॉर्प्शन करने का काम जो है वो ड्यूरा मैटर बहुत अच्छे तरीके से करता है. So therefore dura matter has a very good of significance when we talk about the protection factor, and being the outermost layer as well, it is very very thick. ठीक है, थिक होता है ये, बहुत ज्यादा थिक भी अपीयरेंस पड़ता है देखने के लिए. ठीक है, अभी इसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंड लेयर का आपका. ओके, द सेकेंड लेयर एज यू कैन सी, द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज द arachnoid matter. Okay, second layer is what we call as arachnoid matter. Now students, what is arachnoid matter? Arachnoid matter is the middle layer. Okay, it is middle layer. मिडल लेयर होने के साथ साथ इसका भी फंक्शन प्रोटेक्शन हो सकता है, और इसका अपीयरेंस जो मेम्ब्रेन में अगर आप देखते हैं, अगर आप लेयर बाय लेयर देखेंगे तो आपको समझेगा कि इसका लेयर, इसका जो अपीयरेंस है, इट इज वेब लाइक. ओके, ऐसा स्पाइडर के वेब जैसा अपीयरेंस इसका देखने को आपको मिलता है. मिडल मोस्ट लेयर है, नेचर कैन बी प्रोटेक्टिव. थर्ड बीइंग, द थर्ड कंपोनेंट इज द पाया मैटर. ठीक है, तीसरा कंपोनेंट इज द पाया मैटर. स्टूडेंट्स, पाया मैटर हैज मोर वैल्यू बिकॉज सबसे पहला तो इनर मोस्ट. ओके, सबसे पहला तो भैया इनर मोस्ट लेयर है. इनर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ इट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ द ब्रेन. ब्रेन के साथ क्लोज कनेक्शन में है, क्लोज कॉन्टैक्ट में आपको ये देखने को मिलता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो पहला बात तो आपका क्लोज एसोसिएशन भी है, एंड इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए, दैट पाया मैटर इज ऑल्सो न्यूट्रिटिव इन नेचर. ओके, पाया मैटर इज न्यूट्रिटिव इन नेचर. न्यूट्रिटिव मीनिंग इट कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द ब्रेन. ब्रेन को जो भी डेवलपमेंट के लिए जो भी खाना पानी लगता है, न्यूट्रिशन लगता है, वो न्यूट्रिशन देने का काम भी ये जो आपका पाया मैटर है वो प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, सो देयरफॉर यू हैड ड्यूरा मैटर, arachnoid मैटर एंड पाया मैटर. कलेक्टिवली तीनों के तीनों लेयर्स को आपने क्या बोल दिया? यस, एब्सोल्युटली राइट, वी हैव मेनिंजेस. बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड. अभी तक अपन बहुत सारे ह्यूमन फिजियो के चैप्टर्स पढ़ लिए हैं. आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर मान लो कि आपके पास 2 लेयर्स है, ठीक है, 2 लेयर्स है, ये दोनों के दोनों लेयर्स के बीच में अगर मान लो देयर इज अ स्पेस, द स्पेस इज नेवर एम्प्टी. देयर इज लाइक इट इज नॉट द केस वेयर इन देयर इज नथिंग इनसाइड इट. सो मतलब ऑलवेज सम और द अदर थिंग इज प्रेजेंट, एंड इन जनरल केस यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड टिल नाउ दैट फ्लूइड इज फिल्ड. बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे एम्प्टी हॉलो स्पेसेस होती हैं, वहाँ पे जनरली पानी फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोई ना कोई अलग अलग फॉर्म्स के अंदर. सो देयरफॉर सिमिलरली यहाँ पे भी आपको अलग अलग टाइप के स्पेसेस देखने को मिल सकते हैं. टू टॉक अबाउट इन डिटेल, लुक एट इट. ठीक है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड arachnoid मैटर. ठीक है, कैन यू जस्ट इमेजिन, इमेजिन करिए आपका ड्यूरा और arachnoid, उसके बीच में जगह.
सो देयर इज अ स्पेस। स्टूडेंट्स, इस स्पेस को क्या बोला? द स्पेस इज कॉल्ड एज सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज सब ड्यूरल स्पेस, एंड बिकॉज यहाँ पे जगह है, इट हैज टू बी फिल्ड विद द फ्लूइड, एंड द फ्लूइड नेम वुड बी, द नेम ऑफ द फ्लूइड हियर इज serous fluid. Okay, the fluid is serous fluid. Similarly, there is also a space between the arachnoid and the pia. Okay, so there is a space between arachnoid and pia mater. Okay, arachnoid and pia mater. तो एरिकनॉइड एंड पाया मैटर के बीच का जो जगह है उसको आपको बोलना है सब एरिकनॉइड स्पेस. ओके, अगेन यू हैव द स्पेस देयर, so it has to be filled with the fluid. The name of the fluid is CSF. CSF का full form is cerebrospinal fluid. Okay, it is cerebrospinal fluid. So I hope you're able to understand what I'm trying to say. So there is a space जो कि present है ड्यूरा मैटर के बीच में और एरेक्नॉइड के बीच में, बोलने का सब ड्यूरल स्पेस. देन यू हैव द स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर इज कॉल्ड एज सब एरेक्नॉइड स्पेस. दोनों के जगह अलग अलग पानी भरा हुआ है, फ्लूइड्स भरे हुए हैं. सब ड्यूरल स्पेस में यू हैव सीरस फ्लूइड एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस में यू हैव CSF. We do not much of the detail we talk about serous fluid, but we really talk about what is CSF. Okay, so to begin with, let's quickly jump on to understanding what do we really understand by the term CSF. ठीक, तो चलो फटाक से अपन इस पे जाते हैं. CSF, जैसे कि मैंने इसका बताया था फुल फॉर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज cerebrospinal fluid. Okay, it is also called as cerebrospinal fluid. It is secreted by certain types of cells in your body, in your brain. But अभी कुछ cells का फिलहाल मैं नाम ले रहा हूँ, मे बी आपको शायद ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना हो, is not a concern right now to you, so we'll just have a glance at it. So CSF is secreted by a region in the brain which is called as the choroid plexus. Then you can have a region in the brain which is called as ependymal cells. Okay, ये दो ऐसे रीजन्स होते हैं जहां से CSF रिलीज होता है. CSF का बेसिक फंक्शन क्या है पता है? ओके, मैं इसके फंक्शन के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं. फंक्शन जरा जान लेंगे. सबसे पहला फंक्शन इज लुब्रिकेशन. ओके, लुब्रिकेशन, to a certain extent also nutrition. Okay, third function can be shock absorption. Shock absorption meaning कि जहां पे आपका ब्रेन अगर कोई झटका वगैरह उसको लग जाता है तो वहां से मैकेनिकल शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है. नंबर 4, it also prevents brain from ड्राइंग आउट मतलब हमेशा ब्रेन को हाइड्रेटेड रखेगा, ब्रेन को बिल्कुल भी ड्राई आउट होने नहीं देगा, हमेशा कोई ना कोई फॉर्म में मॉइस्चराइज्ड रखेगा, वाटर कंटेंट प्रेजेंट रहेगा ताकि ब्रेन एकदम ड्राई आउट ना हो पाए. सो दैट इज द मेजर फंक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट CSF. ठीक है, CSF के बारे में और दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. इट हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी. ओके, it has a specific gravity of 1.003 with a CSF volume of approximately 100 to 120 ml. So at approximately इतना वॉल्यूम आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में CSF का देखने को मिल सकता है. I hope you are able to understand what I am saying, students. So this is a quick understanding about CSF. इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने 3 ब्रेन के अलग अलग लेयर्स भी देख लिए हैं. अभी अपन जाते हैं फटाक से ब्रेन के कंपोनेंट्स में, जो कि आपको समझना जरूरी है.
ठीक है, जब आप मैं बात करता हूँ सुनना, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का टेक्निकल साइंटिफिक नेम इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का वेट कैन बी अप्रोक्सीमेटली 1.3 to 1.4 kgs, ओके। सो इतना अप्रोक्सीमेटली वेट हो सकता है विथ वॉल्यूम ऑफ 1400 to 1500 cc, ठीक है, रफली अराउंड उतना वेट एंड वॉल्यूम इसका है। एनसेफेलॉन भी बोला जाता है। साथ ही साथ ब्रेन के जो है, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट्स रहे? 3। कौन से स्टूडेंट्स? विल टॉक अबाउट इट। द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड एज forebrain, okay, forebrain. The second part is what is called as midbrain. Then third is called as hindbrain, ठीक है। सो यू हैव forebrain, you have midbrain, you have hindbrain. इसके अंदर भी इंडिविजुअली पार्ट्स है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ब्रेन को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आपने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपका। द वेरी फर्स्ट इज द फोर ब्रेन, द सेकंड पार्ट इज द मिड ब्रेन एंड द थर्ड कंपोनेंट इज द हाइंड ब्रेन, ठीक है। सो बेसिक ह्यूमन ब्रेन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स क्विकली चलो फटाक से आगे जाते हैं। आपके पास वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर ब्रेन फर्स्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे ना आपको फोर ब्रेन के भी पार्ट्स बता देता हूँ ताकि इजी रहे नेक्स्ट स्लाइड को पिकअप करने के लिए। सो जब आप जस्ट सेकेंड, जब आप फोर ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स इंडिविजुअली, ठीक है। द वेरी फर्स्ट इज योर ऑल फैक्टरी लोब, okay, then you have cerebrum, then you have what is called as diencephalon, ठीक है। You have olfactory lobe, you have cerebrum, and then you have diencephalon. So we'll talk about the very first component of the brain, which is the olfactory lobe, ठीक है। तो चलो फटाक से olfactory lobe, जहां जहां पे जिस स्लाइड्स पे फोटोज है स्टूडेंट्स, मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बिकॉज आई हैव केप्ट अरेंज्ड एवरीथिंग। सो सबसे पहला अपन देखते हैं olfactory लोब, ठीक है। एकदम सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं इन्वॉल्व। देखो हमेशा याद रखना जब भी कोई बोले olfaction, ऑलवेज रिमेंबर olfaction मीनिंग स्मेल, ठीक है। olfaction मीनिंग सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। सो olfactory लोब क्या कर रहा होगा? करेक्ट, olfactory lobe is a region which is responsible for detection of smell, ठीक है। आपके नाक के पैलेट पे होता है, मतलब से यू हैव, ओके, सो आपका नेजल पैलेट ऊपर रहता है, इफ यू नो लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। इसके अपर रूफ पे, यहाँ पे अपर रूफ पे यहाँ पे ऐसा कुछ रीजन होता है ऑल्फैक्शन का, कुछ स्पेसिफिक ऐसा इमेजिन करिए सेंसर जैसा, और इसको ऐसा यहाँ से डिटेक्शन के लिए ऐसा नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होती है, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेड टू द ब्रेन। सो मतलब ये इंफॉर्मेशन किसके तरफ कैरी हो जाएगा? दिस इंफॉर्मेशन विल बी टेकन टू द ब्रेन। सो आप whatever you are going to smell, whatever you are going to have any kind of smell will be detected by this sensor, and यही सेंसर जो होता है olfactory lobe का जो सेंसर है, this olfactory lobe is divided into 2 parts,
दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है जिसको आप बोलते हैं ऑल फैक्ट्री बल्ब, ओके। दूसरा होता है विच इज कॉल्ड एज ऑल फैक्ट्री ट्रैक, ओके। बल्ब और ट्रैक का क्या मतलब कि अगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, यू हैव अ सर्कुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड इमेजिन करें दिस इज ऑल फैक्ट्री बल्ब, ठीक है, ये बल्ब है, इसको ऐसा ग्रुप ऑफ नर्व्स बाहर निकलती है, ऐसा ऐसी नर्व्स बाहर निकलती, ठीक है। तो इसके अंदर का इसको बोलो ऑल फैक्ट्री बल्ब, ठीक। एंड इसको क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री ट्रैक। ऐसा दो कंपोनेंट्स होता है। सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है ऑल फैक्शन के बारे में कि ह्यूमंस के पास इतना बेटर सेंस ऑफ स्मेल नहीं है गाइस, ओके। सो यू शुड नो दिस दैट ह्यूमंस हैव very, not very I would say, but have poor sense of smell, ठीक है। some animals might have a very good sense of smell. Can you name them? Yeah, dogs, sniffer dogs, they can be used in multiple defense forces across the world. So you have different kinds of animals which can really help you in spotting things up. But humans के लिए कैसा हो गया, ह्यूमंस के पास देखो सेंसरी ऑर्गन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है ना। तुम्हारे पास आंखें भी है, तुम्हारे पास स्किन भी है, द सेंसेशन ऑफ टच, okay, then you have taste, then you have smell. So in the course of evolution, the factor of dependency on smell, I would say, has reduced because we have our other senses well developed. Therefore, we may not have the best of the best olfaction among the animal kingdom, but definitely I would say so that we have other senses which are at a level which will really help us to survive. See, ultimate aim क्या है ना सेंसेस का, क्या है भाई, तुमको सरवाइव करना जरूरी है। सर्वाइवल के लिए भाई आजू बाजू से कोई प्रेडेटर तो नहीं आ रहा, आजू बाजू से कोई डिफेंस के लिए नो आपके लिए प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसमें से एक था स्मेल भाई। स्मेल के लिए क्या हो गया कि भाई आपके पास वो अच्छे से डेवलप्ड है, बट इतना अच्छा नहीं है कि यू कैन स्टार्ट स्मेलिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दैट वुड बी रियली टैड बिट ऑब्वियस एंड वेरी वेरी ऐसा वियर्ड, या हाँ। सो वैसा नहीं है, बट या एनिमल्स, बाकी एनिमल्स के पास आपको चीज देखने को जरूर मिलता है, ह्यूमंस के पास इतना अच्छे से डेवलप नहीं है, जान लीजिए, ठीक है। सो ये आपका ऑल फैक्टर लोग खत्म, इजी, कुछ नहीं है। बात अभी कहाँ पे आता है पता है, बात अभी बताता हूँ। सेकेंड कॉम्पोनेंट कौन सा है भैया, सेकेंड कॉम्पोनेंट आपका है सेरिब्रम, ठीक है। द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज सेरिब्रम। Students, you should pay attention to cerebrum because why is it so? Because cerebrum जो है ना, it is the largest part of the brain, ठीक है। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है। कितना बड़ा है सर, ऑक्यूपाइज टू अबाउट 85% of the total ह्यूमन ब्रेन। सो तकरीबन 85% का सेरिब्रम होता है, जो कि भाई साहब डिवाइड करा जाता है दो पार्ट्स में। सो सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला नंबर 1 इज कॉल्ड एज राइट cerebral hemisphere, okay, right cerebral hemisphere. The second component is called as the left cerebral hemisphere. मतलब क्या, देखो पूरा सेरिब्रम है ना, पूरा सेरिब्रम है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दोनों पार्ट को हेमिस्फीयर बोल दिया। सेरिब्रम है तो पड़ गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट है तो पड़ गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो बीच में से कट जाता है इस तरीके से, तो दिस इज योर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज योर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, of which if you have a glance over the diagram you might notice this is how the cut section looks. So I'm really talking about
this important part here. इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सेरिब्रम, दिस पार्ट, ओके। नाउ दिस इज द कट सेक्शन ना, ये ऐसे वाले कट सेक्शन को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? इट इज कॉल्ड एज द सैजिटल सेक्शन, ठीक है, याद रखना है, इट इज कॉल्ड एज द सैजिटल सेक्शन। सैजिटल मतलब क्या? ऐसे कट कर रहे हो, ऐसे straight, you're taking this you're viewing from this side, so you're having a glance at the brain from the lateral side and cutting it out, that is the sagittal section. So you'll have an overall understanding of the cerebrum. ये जो cerebrum होता है ये बहुत सारे अलग अलग sections में divided है, and when we talk about द सेरिब्रम, इसमें किस तरीके से, वही मैं बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे आपका ये सेरिब्रम प्रेजेंट है, ठीक है। अभी बिकॉज आपके पास दो सेरिब्रम है, हेमिस्फीयर्स वाइज दो है ना, एक राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, बट कभी भी ये चीज याद रखना है कि राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब तू तेरा देख मैं मेरा देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर विल बी समहाउ interacting with each other. Question is how are they interacting? The interaction between the right cerebral hemisphere and the left cerebral hemisphere occurs with the connection of you can say neurons or the nerves. Okay, so एक जंक्शन आता है दोनों के बीच में, ठीक है। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे ये चीज समझिएगा जरा, ठीक है। अभी मैं ना एक ह्यूमन ब्रेन बना रहा हूँ, जरा समझना, ओके। तुम समझ रहे हो कहाँ से देख रहे हो? नहीं समझे? देखो आंखें आगे है, आंखें आगे है, समझा? तुम लोग ना ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से। सो कैन आई से ऊपर से अगर सामने के एंगल से आप देख रहे हो तो दिस विल बी योर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस कैन बी योर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अभी राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जैसे कि मैंने बताया इंडिविजुअली तो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया पता है? हम लोगों ने सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक जंक्शन पे कनेक्ट कर दिया। कुछ इस तरीके से इमेजिन करिए कि इधर की सारी नर्व्स इस ब्रेन की, मतलब आपके लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की सारी नर्व्स यहाँ पे मिल रही है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। और सिमिलरली ये चीज इधर भी हो रहा है कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसकी सारी नर्व्स एक जगह पे मिल रही है, समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा थिक फाइब्रो मस्क्यूलर एक बहुत ज्यादा बैंड क्रिएट हो जा रहा है, जो नर्व का बैंड होता है। बैंड का मतलब क्या गाइस? एक ग्रुप, एक तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि भैया ग्रुप है, कि बीच में एक इंटरसेक्शन इस तरीके से क्रिएट हो गया कि भाई जहाँ पे राइट के सारे नर्व्स एक जगह पे मिले, मान लो राइट है, लेफ्ट है, लेफ्ट के सारे नर्व्स एक जगह पे मिले, राइट के सारे नर्व्स एक जगह पे मिले, एक जगह पे उन्होंने क्या कर दिया है? कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया है। वो जो कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया है उस कॉम्प्लेक्स का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो। And the name of that complex where they are meeting, this point I'm talking about, this is called as corpus callosum. याद रखना guys, corpus callosum. Now students, when we talk about corpus callosum, you should understand that, just a second, I'll take your yeah, so you should understand that corpus callosum होता है, corpus callosum जैसा होता है ना, जैसे भी मैंने बताया कि right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere, okay, the group of nerves meet in the center, सेंटर पे मिलती है। अभी जब सेंटर पे मिल रही हैं तो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज कॉर्पस callosum. Okay, students, it is called as corpus callosum, and to your surprise, you should know corpus callosum is the largest commissure. Okay, largest commissure of the brain.
ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट कमीजर। स्टूडेंट्स अभी आपके मन में आएगा भैया कमीजर क्या है? कमी देखो, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन क्या होता है? जंक्शन मतलब जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन काइंड ऑफ अ थिंग। वैसे यहाँ पे कैसा हो रहा है कि बहुत सारे नर्व्स है वो कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक जगह पे मिल रहे हैं, तो नाम पड़ गया भैया कमीजर। पूरे ब्रेन में आपके पास और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के कमीजर्स प्रेजेंट है, मगर उन सारे कमीजर्स में कॉर्पस कैलोजम सबसे बड़ा है। बिकॉज ऑब्वियसली फिर लुक एट इट नो कि राइट के सारे नर्व्स, लेफ्ट के सारे नर्व्स एक जगह पे मिल रहे हैं, सिग्निफिकेंटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So I hope you're able to understand. To give you a quick glance over it, can you spot? Can you spot corpus callosum? Absolutely so. ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला, दिस इज अ कॉर्पस. और ये कैसे विजिबल है समझा तुमको? सैजिटल कट लिया ना, तो वहां पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा, वहां पे इंटरसेक्शन हो रहा था. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देखो भैया समझ में आ रहा है क्या पक्के से? सो दिस इज द कॉर्पस कैलोजम कि जो आपको इंटरसेक्शन में हेल्प कर रहा है. पक्का? चलो अभी आगे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट देखेंगे, फटाफट जानेंगे और कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट. अभी व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेन ना, जब आप ब्रेन के बारे में बात करते हो, सी ब्रेन, व्हेन यू लुक एट इट, you will find there are two different regions present in the brain. ठीक है? The one region is called as elevation, the another region is called as depression. So एक रीजन हो सकता है एलिवेशन, दूसरा रीजन हो सकता है डिप्रेशन. So मतलब क्या हो गया कि इधर से फॉर एग्जांपल अभी यही इसी का ही बात कर ले तो अलग से क्यों ड्रॉ करूं ना. यहाँ पे लुक एट इट, कैन यू सी दिस इज एलिवेशन, कलर नहीं विजिबल, this is elevation. Can you see this is depression? Elevation, depression, elevation, depression. You understand नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इन कलेक्शंस को टोटैलिटी में बोलने का कॉन्वोल्यूशंस. क्या बोलने का? कॉन्वोल्यूशंस. ठीक है? ये कॉन्वोल्यूशंस दो टाइप के हो सकते हैं गाइस. सबसे पहला इज एलिवेशन. ठीक है? सबसे पहला इज एलिवेशन. एंड एलिवेशन जो होता है, एलिवेशन को इन बायोलॉजी यू ऑल्सो कॉल्ड एज गायरस. ठीक है? एंड देन यू हैव एलिवेशन के बाद आपके पास आता है डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन को नाम देना है आपको सल्कस. सो आपके पास गायरस है और सल्कस है, ऐसे दो पार्ट्स होते हैं. तो योर ब्रेन इज नॉट प्लेन स्मूथ, राइट? Your brain has some infoldings, some convolutions in two major forms, one being the gyrus, another being the sulcus. Fantastic. चलो समझ में आ रहा है, तो गायरस एंड सल्कस इधर तक आपको समझ में आ गया है. इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ा गौर कराना चाहूंगा कि आपके सल्कस जो है ना ब्रेन में, कैटेगोरिकली जब आप सेरिब्रम के बारे में बात करते हैं, सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम हैज 3 मेजर सल्कस. ओके? 3 बहुत ही मेजर सल्कस प्रेजेंट है ब्रेन में, जिसका फोटो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा. जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे. ओके? सो यू हैव 3 मेजर sulcuses. Writing it down once again. Cerebrum has 3 मेजर sulcus. ठीक है? जो मैं बोल रहा हूं उतना आप फोकस कीजिए. कौन से है? सबसे पहला सेंट्रल सल्कस. ओके? सेंट्रल सल्कस. कैन यू सी सेंट्रल सल्कस? Central sulcus. Okay, central. Then you have the second component, which is called as the lateral sulcus. Okay, and then you have the third major sulcus, which is called as the parieto-occipital sulcus. कि मैं तीनों चीजों के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि भैया आपका ब्रेन जैसे 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसे तुम्हारा ब्रेन 4 मेजर लोब्स में भी डिवाइडेड है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन ब्रेन, ओके, ह्यूमन ब्रेन हैज 4 lobes.
ओके और ये आपने आई थिंक लोअर स्टैंडर्ड्स में स्कल के फॉर्मेट में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में। कौन से होते हैं? सबसे पहला एक होता है जिसको आप बोलते हो, इट इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब, ठीक है। देन सेकेंड क्या होता है? सेकेंड इज कॉल्ड एज द parietal लोब, ठीक है। थर्ड, देन यू हैव द टेम्पोरल लोब, ठीक है। एंड फोर्थ इज व्हाट इज कॉल्ड एज द occipital lobe. So you have frontal lobe, you have parietal lobe, you have temporal lobe, and you have occipital lobe. Can you see frontal? आगे वाले साइड में frontal is this, parietal is this, temporal is this, occipital is this. ऐसे दो चार अलग अलग पार्ट्स में पूरे ह्यूमन ब्रेन को आपको डिवाइड कर दिया है। तो सेंट्रल सल्कस जो होता है इट सेपरेट्स फ्रंटल एंड द parietal lobe. You understand the point? ठीक है। जो सेंट्रल सल्कस होता है वो आपके फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट कर देगा। ओके। जो आपका लैटरल सल्कस होता है, लैटरल सल्कस इट सेपरेट्स द पैराइटल लोब विद द टेम्पोरल लोब, ठीक। lateral sulcus separates the parietal lobe with the temporal lobe and parieto-occipital sulcus separates your parietal lobe with the occipital lobe. Easy and very simple to understand. तीन सल्कस चार लोब्स को ब्रेन को डिवाइड कर दे रही हैं। सेंट्रल सल्कस है, लैटरल सल्कस है, देन यू हैव पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ रहा है क्या? अब तक हम लोगों ने क्या किया आपको समझना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम लोगों ने अभी तक सल्कस के बारे में बात किया, गायरस एंड सल्कस देख लिया, तीन अलग अलग सल्कस के बारे में भी बात किया है। ओके। और मैंने आपको क्या बताया? चार अलग अलग टाइप के लोब्स भी है, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सिपिटल लोब है। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके। सो अभी अपन आगे जाते हैं विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट विच इज द फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन। ओके। सो अभी अपन बात करते हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन। चलो नेक्स्ट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द functional areas of the brain. देखो आपके पास चार लोब्स है, चारों लोब्स के अलग अलग गाइस फंक्शंस है। सबसे पहला देख लेते हैं आप अपन फ्रंटल लोब, ठीक है। सबसे पहले फ्रंटल लोब देखो। फ्रंटल लोब जो है ना, फ्रंटल लोब आपको याद रखना है, फ्रंटल लोब इज अ सेंटर ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। ओके, इट इज अ सेंटर ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। मतलब क्या? फ्रंटल लोब जो है इसके पास कुछ मोटर एरिया होता है। ओके, मोटर एरिया होता है जो क्या करता है, आपके वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ओके, सो यू हैव टू रीजन्स इन हियर। सो यू हैव वन इज द मोटर रीजन, ओके, विच इज द मोटर एरिया। मोटर एरिया जो होता है इट कंट्रोल्स योर वॉलेंट्री एक्टिविटीज। Okay, it controls your voluntary activities. Other part inside the voluntary activities का मतलब something which you can control by yourself. Okay, खुद skeletal activities. Then आपके पास एक region होता है which is called as premotor area. Okay, premotor area is a center of involuntary activities. Students, involuntary activities का मतलब क्या होता होगा? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज मतलब समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, आपके विल या कॉन्शियसनेस में वो नहीं। ये सारा का सारा चीज इधर फ्रंटल में बात करो, पिंक वाला कलर, तो यहाँ पे बात करो। सो वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज है, इनवॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज में आपको देखने को मिल सकता है। दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, other than that you also have a region which is called as the association region. ओके, एसोसिएशन रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेंसेशन एंड मूवमेंट्स। ओके, सो आपके फ्रंटल एरिया में एक रीजन होता है जिसको आप बोलते हो एसोसिएशन रीजन। ओके, एसोसिएशन रीजन इज अ मेजर रीजन फॉर कोऑर्डिनेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन between your sensations, okay, between your sensations and movement, ठीक है, between your sensation and movements.
सेंसेशन मूवमेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका कोई सेंसरी ऑर्गन्स है उनके रिस्पेक्ट में क्या मूवमेंट्स आएगा, क्या नहीं आएगा, वो सारा चीज़ें इधर आता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे जो मैं फोकस करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड एज द ब्रोकाज एरिया। ठीक है, यू हैव अ रीजन इन हियर विच इज कॉल्ड एज ब्रोकाज एरिया। स्टूडेंट्स, ब्रोकाज एरिया जो होता है ना, ब्रोकाज एरिया, it converts our thoughts into speech. Okay, thoughts into speech matlab it is also a center of intelligence. It is a center of intelligence. It is a center of, to an extent, it is also center of emotions. It is a center of willpower, and it is also a center of personality. कि देखो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मन में कुछ सोच रहे हो, कुछ ना थॉट्स चल रहे हैं आपके दिमाग में, वो थॉट्स को स्पीच में कन्वर्ट करना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। आपने कुछ चीज इवेल्युएट की, आपने कुछ चीज तो आपके दिमाग में सोच ली है, ओके, तो दिमाग में सोच ली है, तो अभी उसको आपको जुबान पे लाना है, तो you'll रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ आर्टिकुलेशन ना। आर्टिकुलेशन का क्या मतलब कि जहाँ पे see randomly you can't blabber, you can't just keep on saying anything like that, right? You need organization of sentences. And एक important बात ये भी है कि बहुत बार ऐसे भी होता है कि आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, या आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, ओके, मन में पता है, दिमाग में पता है वो चीज, बट ना जुबान पे आ नहीं रही है। इट रिक्वायर्स आर्टिकुलेशन। ओके, आर्टिकुलेशन मतलब क्या है? टू बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस इन अ वे फॉर अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड। वो जो अंडरस्टैंडिंग वाला जो फैक्टर है, वो फैक्टर ये भैया देते हैं ब्रोकाज एरिया, कि भाई क्योंकि देखो ना, थॉट्स और बोलना, इसके बीच में एक छोटा सा एक गैप, वैक्यूम है, वो वैक्यूम में आर्टिकुलेशन है, वर्ड्स। तो ये आपको वर्ड्स देता है ताकि आप उस चीज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाओ वाया वर्बल एक्शंस। स्पीच मतलब वर्बल एक्शंस। So whatever you're thinking, those thoughts needs to be converted in such a way that the other person might understand it, and that is how this Broca's area functions. Therefore it is a center of intelligence also. इंटेलिजेंस का भी सेंटर है जो, और बेसिकली एक चीज का याद रखना आप, फ्रंटल लोब ना बहुत सारे ना ये सारे एक्टिविटीज करता है, आपका सोचने का तरीका, आपका इंटेलिजेंस पावर, ओके, कि आप एक होता है इंटेलिजेंस, दूसरा होता है इंटेलेक्ट, ओके, दोनों में जरा फर्क है। ये दोनों चीजें जो है ये आपके फ्रंटल एरिया में, मोटर कॉर्टेक्स में डिटरमाइन होती है। सो फ्रंटल लोब इन अ वे इज सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट व्हेन वी कंपेयर विद द अदर लोब्स ऑफ द ब्रेन. So kind of I can say it like that, in a way it's significantly important because it holds value. It holds value because while execution and while talking, whatever you're thinking needs to be put out in a way which is easily understandable, and done by the center of intelligence and center of emotions, willpower, personality, and that is your Broca's area. देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज योर फ्रंटल लोब। मैंने क्या बताया था, हमारे पास कितने लोब्स प्रेजेंट है? करेक्ट, मेरे पास कितने लोब्स है अपने पास भैया 4 लोब्स है, 4 लोब्स है। और ये चारों के चारों लोब में सबसे पहला लोब जो होता है वो आपका फ्रंटल लोब है। सेकेंड लोब इज द पराइटल लोब। पराइटल लोब, अभी स्टूडेंट्स पराइटल लोब में देखते हैं, देखो ये भी इंटरेस्टिंग है। द सेकंड यू कैन सी इन द डायग्राम, यू कैन लुक एट द डायग्राम, रेफर द डायग्राम, जैसे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप डायग्राम को रेफर कर सकते हैं। तो यू हैव द पराइटल लोब, ठीक है, पराइटल। अब ये जो पराइटल लोब होता है ना, पराइटल लोब खास करके ये कुछ चीजें, सेंसेशन डिटेक्ट करता है, मतलब इट कैन डिटेक्ट पेन, it can detect pressure, it can detect temperature, it can also detect touch. Okay, pain, pressure, temperature, touch कुछ important functions है। दूसरा ये और एक चीज है कि मैं और एक चीज अलग से बताना चाहूंगा कि भैया ये ना, ये टेस्ट भी डिटेक्ट करता है। It also detects taste. It has a receptor which is called as gustato receptor.
गस्टैटो रिसेप्टर, ठीक है, ये आपका पैराइटल लोब। पैराइटल लोब भैया कहाँ पे, येलो शेडेड रीजन इज योर पैराइटल लोब। तो देख लिया फ्रंटल, इजी है, इतना जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना गाइस उतना आप कर लीजिए, सफिशिएंट इनफ है, बाकी कुछ आपको याद रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपका पैराइटल। तो थर्ड कंपोनेंट क्या है भैया, थर्ड कंपोनेंट इज योर नथिंग बट द टेम्परल लोब। अभी टेम्परल लोब जो होता है, टेम्पोरल लोब जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, जस्ट अ सेकेंड, टेम्पोरल लोब responsible for hearing, then it can be responsible for olfaction, ओके। olfaction का मैंने स्टूडेंट्स क्या मतलब बताया था तुमको, olfaction मतलब स्मेल, हियरिंग मतलब क्या रहेगा, ऑडिटरी, फैंटास्टिक। देन यू हैव अ रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, एंड देन यू हैव रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस। तो ये कुछ रीजन्स आपके टेम्पोरल लोब में भैया है, देखो इजी है, ठीक है। देन चौथा कौन सा भैया, चौथा इज यू हैव ऑसिपिटल लोब, ओके। फोर्थ यू हैव द ऑसिपिटल लोब। देखो ऑसिपिटल लोब में ना एक फंक्शन जो आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, दैट इज भैया विजन, ओके। सो इट इज अ सेंटर ऑफ विजन, इट इज अ सेंटर ऑफ विजन, मतलब जो लाइट रेज डिटेक्शन होती है, जो आप देखते हो, उसको प्रोसेसिंग का जो भी सिस्टम है वो आपका वहां पे है, कहाँ पे, ऑसिपिटल लोब में है। अभी कैन आई से टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, ठीक है ना। देर इज अ पॉइंट, देर इज अ पॉइंट, ओके, देर इज अ पॉइंट वेर पैराइटल, टेम्पोरल, ओके, एंड ऑसिपिटल लोब्स मीट। एक ऐसा हिस्सा जहां पे पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब्स मीट, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जहां पे मीटिंग करते हैं ना, ये मीटिंग पॉइंट में एक रीजन होता है ब्रेन में, एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्निक्स एरिया। क्यों इंपॉर्टेंट, ब्रोका जैसा था। वर्निक्स इज अ सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस और इट इज एन इंटेलिजेंस सेंटर, इट इज अ इंटेलिजेंस सेंटर। इंटेलिजेंस सेंटर का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस सेंटर का मतलब कॉम्प्रीहेंशन। देखो ए फॉर एप्पल पता था, बी फॉर बॉल पता था, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, सब कुछ पता था, बट जब आपको ए, पी, पी, एल, ई, 5 अल्फाबेट्स, जॉइन देम यू गेट वन वर्ड। ये जो इसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते, समझना, अल्फाबेट टू वर्ड, वर्ड टू सेंटेंस, सेंटेंस टू पैराग्राफ, इस चीज को समझना, कॉम्प्रिहेंशन, वर्निक्स एरिया, इसलिए इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा, तो इंटेलिजेंस सेंटर इज अ रीजन वेर इन इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स। सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है ये समझाने का जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी अपना कौन देगा, ये कैपेसिटी इज गिवन बाय नन अदर देन द ऑसिपिटल लोब। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं पक्के से, ओके, फैंटास्टिक। ओके, नाउ एक पॉइंट पे जहां मैं तुमको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि भाई तुम्हारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन, वहां पे कुछ कुछ ऐसे दो हिस्से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंटायर ब्रेन में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, आपके ब्रेन में दो हिस्से देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होता है जिसको आप बोलते हो ग्रे मैटर, ओके, एक होता है ग्रे मैटर। दूसरा हिस्सा होता है जिसको आप बोलते हो व्हाइट मैटर, ठीक है। इसके अंदर का ग्रे, ग्रे को ग्रे इसलिए बोला गया है बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स। स्टूडेंट्स, डू यू नो एंड रिकलेक्ट साइटॉन्स प्लीज, साइटॉन्स, सेल बॉडी, फैंटास्टिक। व्हाइट मैटर में देर इज अ लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। सो देर इज अ रीजन वेयर मासेस ऑफ gray matter is seen inside the white matter, ठीक है। समझा तुमको, जहां पे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर मिक्स हो जा रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट को आपको बोलना है बेसल गैंग्लिया,
just as an MCQ or word sentence, one sentence you can remember कि जहाँ पे masses of gray matter and white matter intermix. Okay, it is very important because it is called as basal ganglia. Now basal ganglia क्यों important है? Basal ganglia जो होता है, it can receive the neurotransmitter. It is concerned with something called as neurotransmitter. Okay, it is concerned with what we call as neurotransmitter. Okay, neurotransmitter. तो न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, आगे चल के थोड़ा और बेटर तरीके से आपको समझ जाएगा। पक्का से क्लियर हो गया भैया आपका जो सेरिब्रम है खत्म। बोलते बोलते हंसते हंसते खेलते खेलते अपन ने ऑल्फैक्टरी लोब भी कर दिया, अपन ने सेरिब्रम भी कर दिया है। ठीक है, अभी किधर जाएंगे? अभी चलो भाई थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कौन सा? थर्ड पार्ट, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द डायनसेफेलॉन। ठीक है, डायनसेफेलॉन, जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट फाइंड आउट वेयर इज डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन, ओके फैंटास्टिक, या ओके चलो अभी अपन मुड़ते हैं कहाँ पे? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट which is called as डायनसेफेलॉन। देखो डायनसेफेलॉन ना, वो मिड पार्ट जो जूम किया गया है वो डायनसेफेलॉन है, मगर मैं चाहूंगा कि आप उसको उस तरीके से याद ना रखकर ऐसे याद रखिए। मैं यहाँ पे बना रहा हूं, समझे? इमेजिन इट लाइक अ स्क्वायर बॉक्स जिसके 3 पार्ट्स, रूफ, वॉल, बेस। समझे? ये तुम्हारा क्या हो गया? डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन के कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। ओके, सो डायनसेफेलॉन के हाउ मेनी पार्ट्स? वी हैव 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स। सबसे पहला रूफ, देन यू हैव वॉल, देन यू हैव बेस। ठीक है, इसमें का रूफ को बोल देना एपिथैलेमस। ठीक है, वॉल को बोल देना थैलेमस, बेस को बोल देना हाइपोथैलेमस। ओके, सो यू हैव एपिथैलेमस, you have thalamus, then you have hypothalamus. Fantastic. यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? सो अभी सबसे पहले क्या करेंगे अपन ना एपिथैलेमस के बारे में बात करते हैं। एपिथैलेमस जो होता है उसके पास मेजरली 2 कंपोनेंट्स है। ठीक है, मतलब क्या बोला मैंने एपिथैलेमस के बारे में? ठीक है, ये देखो 2 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला यहाँ पे मैं एपिथैलेमस लिख दे रहा हूँ, रूफ है ना? सो रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, और खास बात पता है, नॉन नर्वस है, नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट, सो इट हैज 2 पार्ट्स। एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, इसमें का एंटीरियर पार्ट जो भैया, एंटीरियर पार्ट जो होता है ना, एंटीरियर पार्ट, दिस एंटीरियर पार्ट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रीजन विच इज कॉल्ड एज कोरॉइड प्लेक्सस। कहीं कहीं सुना क्यों लग रहा है? क्या करता है? यस, इट इज कोरॉइड प्लेक्सस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ CSF। बराबर पकड़ लिए, फैंटास्टिक है। और दूसरा जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एपिथैलेमस is going to give you a upward, ये important है, it is going to give you upward projection। अपवर्ड प्रोजेक्शन मतलब ऊपर एक आउटग्रोथ आने वाला है। आउटग्रोथ समझते हो आप? ऐसा कुछ एक ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, एक ऑर्गन बन जाएगा। दिस अपवर्ड प्रोजेक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इसको बोला पीनियल ग्लैंड।
पीनियल ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम, ओके, इट रिलीजेस अ हार्मोन एंड दैट इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, मेलाटोनिन जो होता है, मेलाटोनिन दो काम करता है। नंबर वन, इट्स अ स्लीप वेक हार्मोन, मतलब बेसिकली आपका सर्कैडियन रिदम कंट्रोल करता है। सर्कैडियन रिदम मतलब कि एबिलिटी टू रेगुलेट योर स्लीप एंड वेक। सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेलाटोनिन आपको सुलाता है। जब भी आपको नींद आता है तो मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। बट खास बात क्या पता है मेलाटोनिन का, मेलाटोनिन इज एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, सॉरी नाइट टाइम। मतलब जब भी डार्क रहेगा ना, डार्क कंडीशंस होंगे ना, तो जाके मेलाटोनिन एक्टिवेट होता है। और मेलाटोनिन अगर एक्टिवेट होगा तो आपको एकदम पीसफुल डीप स्लीप आता है। इसलिए इसके आप नोटिस करिए, दोपहर का स्लीप, नो मैटर व्हाट हैपेंस, इट इज नॉट एज डीप एज व्हाट इज देयर एट नाइट बिकॉज ऑफ द मेलाटोनिन। बिकॉज मेलाटोनिन मेक्स यू फॉल asleep, it gives you deep sleep। ठीक है, so one function is this। another function, it is responsible for concerned with reproductive, they are also concerned with reproductive behavior। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से भी कंसर्न है। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, एबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो वो चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए जरा समझ में आ रहा है क्या? एपिथैलेमस खत्म हो गया। एपिथैलेमस, ये चैप्टर आप मेरे साथ करते जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई कब खत्म हो जा रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर समझ लीजिए इसका वॉल क्या था, वॉल, यस, ठीक है, वॉल क्या था, थैलेमस। फैंटास्टिक, चलो फटाक से थैलेमस पे जाते हैं। थैलेमस क्या यहाँ पे, यदि ये पूरा पूरा हिस्सा इसका ये बेस हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अपर वाला पार्ट एपिथैलेमस होगा, एपिथैलेमस होगा। अभी अपन कहाँ पे जाएंगे, अभी अपन जा रहे हैं थैलेमस पे। ठीक है, द सेकेंड पार्ट इनसाइड दिस, इनसाइड थैलेमस, इनसाइड सॉरी डायनसेफेलॉन इज थैलेमस। थैलेमस, ठीक है, थैलेमस को कैसे डिफाइन किया था, बरोबर, इट इज द wall of the diencephalon, it is the wall of the diencephalon। ठीक है, डायनसेफेलॉन का ये वॉल होता है एंड बोथ ऑफ देम आर connected to one another। ओके, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वो एक दूसरे से किससे कनेक्ट किया अपन ने, सो इट इज बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ द वॉल्स ऑफ द थैलेमस आर कनेक्टेड with the help of what is called as habencular commissure। it is called as habencular commissure। मैंने बताया था कॉर्पस कैलोजम लार्जेस्ट कमीजर है, दूसरा habencular commissure यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये क्या है, जो एपिथैलेमस गाइस होता है ना, एपिथैलेमस जो होता है ना, इट इज मोस्टली अ रिले सेंटर। ठीक है, इट्स अ रिले सेंटर। अभी रिले सेंटर का मतलब क्या है भाई, देखो जरा समझिए। आपका जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस, द डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, देखो फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, अलग अलग जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, दे कैन बी कनेक्टेड, they can be connected to one another by a system which is called as RAS। स्टूडेंट्स, RAS का मतलब होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है पता है, इट इज जैसे कि मैंने बताया, इट्स लाइक अ रिले सेंटर। सो इट इज द रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। भैया ब्रेन का रिले है, रिले, तो हर एक इम्पल्स, ऑल इम्पल्सेस एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। ओके, ऑल इम्पल्स एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का तुमको मतलब क्या बताया था, हाँ बरोबर। सो एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन आर रिलेड। रिलेड मतलब
इट इज लाइक अ सेंटर जो कि काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है बेस्ड ऑन व्हाट इज अ लोकेशन, कि कहाँ पे कौन सा सेंटर को क्या अलॉटमेंट है, क्या काम का फंक्शन है, कहाँ पे कौन सा सेंटर पे क्या काम जाना चाहिए वगैरह वगैरह. इट्स लाइक अ रिले सेंटर. ठीक है. तो एक चीज आपको याद रखना थैलेमस के बारे में कि भाई बहुत सारे ब्रेन के पार्ट्स विल बी कनेक्टेड बाय वन अनदर विद हेल्प ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एंड थैलेमस इज लाइक अ रिले सेंटर. पक्का. चलो ठीक है, यहां तक ये आपके क्या हुआ भैया, ये आपका क्या हुआ थैलेमस. अभी तीसरा कौन खत्म, थैलेमस खत्म फटाफट, कुछ टेंशन नहीं है भैया. तो थैलेमस अभी नेक्स्ट कौन सा है. हाँ फैंटास्टिक, करेक्ट 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 करेक्ट, इट इज हाइपोथैलेमस. ठीक है, मैं इधर ही बाजू में कर दूं, चलेगा. ठीक है चलो. द थर्ड कंपोनेंट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस. ठीक है स्टूडेंट्स, हाइपो आउट ऑफ द थ्री पार्ट्स, देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा. एपिथैलेमस कर लिया, थैलेमस कर लिया, तीसरा हाइपोथैलेमस. आउट ऑफ ऑल द थ्री पार्ट्स हाइपोथैलेमस इज द इम्पोर्टेंट. द इम्पोर्टेंट, इट इज अ मेजर इन वॉलेंटरी सेंटर. बहुत सारी इनवॉलेंटरी एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो हाइपोथैलेमस से ही होती है. एंड इनका जो सप्लाई होता है, ब्लड का सप्लाई वगैरह, ये सप्लाई आता है थ्रू अ चैनल. इट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमो. okay, it is hypothalamo hypophyseal पोर्टल सिस्टम. ये क्या करता है, ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई इसमें सर हाइपोफाइसियल क्या होता है मैं बताता हूं. अभी तुम्हारा क्या है, हाइपोथैलेमस जो होता है इट इज द बेस ऑफ डायनसेफेलॉन ना. इट इज द बेस ऑफ डायनसेफेलॉन. ठीक है, डायनसेफेलॉन का बेस है. अभी जो बेस होता है ना गाइस, ये बेस मान लो ये बेस ऐसा है. सो बेस जो है ना, बेस इसका इट गिव्स अ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन. पे अटेंशन टू दिस, इट गिव्स यू अ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन. सम रुको जरा, it gives a downward projection like this. So the base of the diencephalon, which is hypothalamus, gives downward projection. मतलब एक डाउनवर्ड एक ग्लैंड वहां पे बन रहा है. दिस डाउनवर्ड प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्ट कर रहा है, दिस प्रोजेक्शन इज नथिंग बट कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में आने वाले मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे. चैप्टर काफी लंबा होने वाला है बट आने वाले मॉड्यूल में अपन डिस्कस करेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, रेगुलेट ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ योर बॉडी. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन क्या वगैरह वगैरह अंडरस्टैंड. अभी के लिए नाम याद रख लेना कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है हाइपोथैलेमस का. पक्के से. मतलब यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से तुमको हाइपोथैलेमस का डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, नाम पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस. ठीक है, पक्के से समझ में आ रहा है यहाँ पे. सो अभी देखो हाइपोथैलेमस जो है सिग्निफिकेंटली वैल्यू रखता है, बिकॉज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है. जैसे हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस इट इज अ लिंक बिटवीन, ये पॉइंट को आप हाईलाइट करना है, ये पॉइंट को हाईलाइट करना है. इट्स लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. मतलब ब्रेन को और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का एक टाइट लिंक बन जाता है, ये एक टाइट कनेक्शन बन जाता है. ठीक है, क्या क्या करता है देखो जरा फटाफट ये भी जान लेते हैं. ठीक है, सो विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस. ठीक है, फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस. सबसे पहला, सबसे पहला इट कैन कंट्रोल और इन अ वे इट कैन रेगुलेट हार्ट रेट. ठीक है, इसका भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी देखता हूँ बताने का ट्राई जरूर करूंगा. हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. सो इट रेगुलेट्स अवर ब्लड प्रेशर. नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर. बिकॉज ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है. हम लोग होम्योथर्म होते हैं, मतलब वी कैन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर्स ना, बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस.
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन, और ये थर्मोरेगुलेशन इज डन बाय योर हाइपोथैलेमस। ठीक है। इट ऑल्सो मेंटेन्स water and electrolyte balance. It also maintains water and electrolyte balance. ठीक है, वाटर का और सॉल्ट वगैरह का बैलेंस मेंटेन करता है। इट ऑल्सो regulates hunger and thirst. हंगर कैसा रेगुलेट करता है? थ्रू मल्टीपल हॉर्मोन्स, बहुत सारे अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं जो ये करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स योर स्लीप। ठीक है, इट ऑल्सो पुट्स यू टू स्लीप, सो इन अ वे इट इज अ रेगुलेटर, स्लीप को भी कंट्रोल करता है। ओके, ये तो भाई 6 इसके मेजर फंक्शंस। अभी ना देर इज अ सिस्टम इनसाइड द हाइपोथैलेमस विच इज कंपोज्ड ऑफ the hypothalamus itself, the amygdala, epithalamus and thalamus. So you have epithalamus, अभी देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, group of, you have epithalamus, ठीक है, you have thalamus, ठीक है, then you have hypothalamus, ठीक है, आपके पास देन है हिपोकैम्पस, देन यू हैव अमिग्डाला। इतने सारे पार्ट्स को जब आप कंबाइन करोगे, जोड़ दोगे, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है, जो कि बहुत शानदार है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है, एंड दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्बिक सिस्टम। इसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये जो है इट इज अ सेंटर ऑफ इमोशन। ओके, इट इज अ सेंटर ऑफ इमोशन। ओके, मैंने यहाँ पे कहीं तो उसका फोटो भी अरेंज करवा दिया है, जस्ट अ सेकंड। ये देखो पूरा जो पार्ट्स मैंने डिस्कस नहीं किया उसको आपको स्किप करना है, बट अदरवाइज देखो हिपोकैम्पस है, एमिग्डाला है, हाइपोथैलेमस वगैरह। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। क्या करता है भाई, क्या करता है लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना, लिम्बिक सिस्टम याद रखना, लिम्बिक सिस्टम is a center of emotion, it is center of motivation, it is a center of will power। ठीक है, सो बेसिकली इमोशन वगैरह सब यहाँ से रेगुलेट होते हैं लिम्बिक सिस्टम। एंड एक चीज याद रखना आप कि तुम्हारे ब्रेन को ना स्टिम्युलस चाहिए, कोई भी एक्शन को एग्जीक्यूट करने को, योर ब्रेन विल रिक्वायर सम और द अदर काइंड ऑफ स्टिमुलस। ये स्टिमुलस जनरली आपको तो ड्राइव करेगा आपके गोल के तरफ, या आपका जो भी काम है उसके तरफ, या फिर आपको सप्रेस करेगा वो काम को अचीव करने से। सो आपके लिम्बिक सिस्टम पे बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स होती हैं, बहुत सारे अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं, जो हॉर्मोन्स ये सब चीज़ों को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कौन से केमिकल्स होते हैं, इज नॉट इन आवर स्कोप ऑफ द सिलेबस, बट there are certain hormones like serotonin, there is a hormone called as dopamine, there is a hormone called as oxytocin, there is a hormone called as adrenaline। बहुत सारे अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं जो आपके मूड्स को बहुत रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो उसमें से लिम्बिक सिस्टम क्या आपका एक टाइप का ऐसा है कि भाई वो मूड बैलेंसर है, मूड को चेक करता है कि हर बार क्या है क्या नहीं वगैरह। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टाइटली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय योर लिम्बिक सिस्टम, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स, द हाइपोथैलेमस। सो स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस के बारे में जितना इंफॉर्मेशन था इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कवर हियर। लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात कर लिया है। एक पार्ट बचता है जो कि इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड एज द मैमिलरी बॉडीज। ओके, याद रखना बस कि आपके हाइपोथैलेमस में देयर इज अ पार्ट विच इज कॉल्ड एज द मैमिलरी बॉडी। ठीक है, मैमिलरी बॉडी इज नथिंग बट इट इज अ सेंटर ऑफ रिकलेक्शन। ओके, रिकलेक्शन, एग्जाम के वक्त पढ़ा रहेगा तो याद आएगा,
वो याद आने के लिए ब्रेन का जो हिस्सा काम कर रहा है उस हिस्से का नाम होता है मैमुलरी बॉडी. सो इट इज अ सेंटर ऑफ रिकलेक्शन. जस्ट रिमेंबर फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू और वन सेंटेंसेस. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द, दिस इज डन. फोर ब्रेन खत्म. देखो बोलते बोलते फटाफट फोर ब्रेन भी खत्म करते हैं. ठीक है, अभी कहां पे जा रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द मिड ब्रेन. देखो मिड ब्रेन इजी है. मिड ब्रेन इजी है. मिड ब्रेन के पास क्या भाई? मिड ब्रेन के पास है दो पार्ट्स है. मिड ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. ठीक है भाई, दो पार्ट कौन से? सबसे पहला इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रूरा सेरेब्री. ओके जस्ट अ सेकंड, लेट मी एडजस्ट द कैमरा. ओके सो यू हैव द वेरी फर्स्ट वन पार्ट. दो पार्ट्स हैं. एक होता है जिसको आप बोलते हो क्रूरा सेरेब्री. अनदर is called as corpora quadragemina. क्वाड मतलब फोर. अभी भैया क्रूरा सेरेब्री जो था ना, क्रूरा सेरेब्री के पास बहुत सारे अलग अलग नर्व फाइबर्स होते हैं. ठीक है, नर्व फाइबर्स होते हैं जिनको मैं सबसे पहले आपको क्रूरा का ही बता देता हूं. सबसे पहला पार्ट जो है क्रूरा सेरेब्री. ठीक है, it contain two tracts of nerve fibers. ओके दो ट्रैक है नर्व फाइबर्स के. एक होता है जिसको आप बोलते हो असेंडिंग ट्रैक. ठीक है, एक असेंडिंग ट्रैक. दूसरा जो है दैट इज योर डिसेंडिंग ट्रैक. ये असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक जो होता है नर्व फाइबर्स का, इट कनेक्ट्स सेरिब्रम, मिड ब्रेन एंड रास. ठीक है, इट कनेक्ट्स सेरिब्रम को मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट कर देगा. सो इट कनेक्ट्स सेरिब्रम, इट ऑल्सो कनेक्ट्स मिड ब्रेन एंड ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू द रास. समझ में आएगा? ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट इनका इसका पॉइंट होता है कनेक्ट करना. मिड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट करके रख देना, पूरा सेरेब्री. ठीक है, जो वहां पे वो पार्ट मैंने जो हाईलाइट किया है ब्लूइश वाला, दैट इज योर मिड ब्रेन. द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द मिड ब्रेन इज नन अदर देन कॉर्पोरा. इट इज कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना. ओके, इट इज कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना. ना कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना जो होता है इसका भाई, इसका ऐसा है कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना का भाई, इसके पास दो पार्ट्स. क्वाड मतलब फोर ना, तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द सुपीरियर कॉलिक्यूलाई. लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज द inferior colliculi. So one is called as superior colliculi, another is called as inferior colliculi. Students, what is this? यहाँ पे लिख रहा हूँ, याद रखना. superior colliculi जो होता है, superior colliculi, it is movement of head in response टू विजुअल स्टिमुलस. मतलब अगर आप देखकर आपका हेड टिल्ट कर रहे हो, देखकर कोई चीज देख ली, आप टर्न कर दे, देख ली टर्न कर दिया, तो ऐसा जो चीजें चेंजेस करते हो मूवमेंट, हेड ऑफ द हेड का मूवमेंट डन बाय सुपीरियर कॉलिक्युलाई. इसका दूसरा भाऊ काय म्हणतो त्याला, इट इज इन्फीरियर कॉलिक्युलाई. ठीक है, इन्फीरियर कॉलिक्युलाई. इन्फीरियर कॉलिक्युलाई भैया क्या होता है? इन्फीरियर कॉलिक्युलाई इज नथिंग बट movement of head in response to auditory stimulus. सुन के अगर आप आपका हेड टिल्ट करें, मम्मी ने बुलाया, सुन लिया, मुंडी टिल्ट, इज कॉल्ड एज इंफीरियर कॉलिक्युलाई. So you have crura cerebri and then you have crura cerebri and corpora quadragemina. कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना में आपके पास सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है एंड देन यू हैव इंफीरियर कॉलिक्यूलाई. खत्म मिड ब्रेन. इतना ही. द नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर हाइंड ब्रेन. ठीक है, जस्ट लेट मी सी हाइंड ब्रेन. ओके,
सो चलो अभी फटाक से तीसरे ब्रेन के पार्ट पे जाते हैं। तीसरा ब्रेन का पार्ट विल बी स्टूडेंट्स, इट विल बी हाइंड ब्रेन। ओके, नाउ हाइंड ब्रेन के पास तीन पार्ट्स। ओके, हाइंड ब्रेन के पास तीन पार्ट्स। एक होता है जिसको आप बोलते हो pons varoli, then you have cerebellum, then you have medulla oblongata। ठीक है, cerebellum एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड सबसे पहला वाज pons varoli। इसका जो pons varoli, कैन यू सी, लुक एट द डायग्राम, बल्ज है ना, बल्जेड है। तो ये जो pons varoli होता है, pons varoli, इट इज actually very very important because it contains certain center for involuntary actions। okay, so pons contains center for involuntary actions। इनवॉलेंट्री, उसमें से एक आपको याद रहेगा, अगर एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ब्रीदिंग में स्विच ऑफ पॉइंट, सांस लेने को मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद रोक देता है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पॉन्स। सेरिबेलम के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस, सेरिबेलम के बारे में डिस्कस कर ले। ये तो सबसे पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज सेरिबेलम। अब सेरिबेलम के बारे में चर्चा करना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, ओके, अकाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 11%। देख सकते हो वहां पे डायग्राम सेरिबेलम का स्क्रीन पे। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, 11% तक ऑक्यूपाई करता है। एंड cerebellum is again divided into right and left cerebellar hemispheres। सेरिब्रम को कैसे डिवाइड किया था? सेरिब्रल था वहां पे, सेरिब्रल, यहाँ पे सेरिबेलार है, वहां पे कॉर्पस कैलोजम से कनेक्ट किया था। यहाँ पे सेरिबेलार हेमिस्फीयर जो रहेंगे, राइट एंड लेफ्ट सेरिबेरल हेमिस्फीयर will be connected to each other with a tissue or a region which is called as median vermis। median vermis, ये दोनों क्या करेंगे, ये आपका सेरिबेलम को कनेक्ट कर देंगे। इधर तक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सेरिबेलम का फंक्शन क्या पता है? पोस्चर, बैलेंसिंग, ओरिएंटेशन एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, इधर मैं फंक्शंस लिख देता हूं। फंक्शंस, सबसे पहला पोस्चर, ओके, इट हेल्प्स यू टू वॉक इरेक्ट, सीधा चलने में हेल्प करता है। बैलेंस, क्वाड्रापीडल से बाईपेडल बने ना बंदरों से, दो दो पैरों पे चलने के लिए हेल्प करता है। सो बैलेंस है, पोस्चर है। तीसरा इक्विलिब्रियम, ठीक है, बैलेंस, आपके सेल्यूलर लेवल पे बैलेंस मेंटेन करके चलता है। ऑल्सो इट कैन रेगुलेट योर मसल टोन, इट ऑल्सो हैज सम कंट्रोल ओवर न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज एंड, ओके, इधर मैं लिख दे रहा हूं, इट ऑल्सो हैज सर्टन कंट्रोल of voluntary activities, okay, then you can have other functions like walking etc। बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। समझा क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसी सेरिबेलम के अंदर की एक चीज और होता है विच इज एर्बोरोवाइटी। यहाँ पे अंदर कट करा तो कैन यू सी ऐसा ट्री लाइक ब्रांचिंग पैटर्न। तो सेरिबेलम के अंदर इट शोज ट्री लाइक branching pattern, and this tree like branching pattern is called as arborvitae। जिस नाम याद रखना, arborvitae।
Arborvitae is also called as tree of life. ओके, ये सेरिबेलम. अब क्या है भाई, अब आपके पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है जो कि तीसरा पार्ट है. ठीक है, starting with the third part of the hindbrain, which is the last part of the hindbrain, which is medulla oblongata. Okay, ये जो medulla oblongata होता है guys, medulla oblongata, it is a center of involuntary actions. ओके, इनवॉलेंटरी एक्शंस, कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल इट कैन रेगुलेट योर हार्ट रेट, इट कैन रेगुलेट योर ब्रीदिंग पैटर्न, सो इन शॉर्ट इट कैन रेगुलेट योर ब्रीदिंग रेट. ओके, इट आल्सो हैज सम कंट्रोल ओवर अदर फंक्शंस लाइक स्नीजिंग, इट कैन कंट्रोल योर फंक्शंस लाइक वॉमिटिंग. ठीक है, इट कैन ऑल्सो हैव सम कंट्रोल ओवर कॉफिंग. ओके, ऐसा सब मल्टीपल अलग अलग है. सो मेड्यूला इन चीजों को भी कंट्रोल करता है. ठीक है, एक पार्ट जो ये बेसिक जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना उतना आप याद रखिएगा. टेक्स्ट बुक में और होगा प्लस 1-2% यहाँ वहाँ पे, बट दैट डज नॉट होल्ड मच वैल्यू व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग. एंड जितना मैंने कवर किया, इट्स 99.99% इट्स डन. ब्रेन का जो भी पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड यस, बट स्पाइनल कॉर्ड विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, सो विल टॉक देयर. एक पार्ट यहाँ पे बच जाता है जो कि ब्रेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट. देखो मैंने क्या बोला था, हॉलो स्पेसेस फ्लूइड, राइट. ब्रेन के अंदर भी कुछ हॉलो स्पेसेस है. ठीक है, ब्रेन के अंदर भी हॉलो स्पेसेस है. और जब ब्रेन के अंदर हॉलो स्पेसेस होते हैं ना गाइस, उनको अपना वेंट्रिकल्स बोलते हो, वेंट्रिकल्स बोलते हो. सो यू ऑल्सो हैव सम हॉलो स्पेसेस. Okay, you have some hollow spaces in the brain. ब्रेन के अंदर कुछ hollow spaces present है, और ये जो hollow spaces होती हैं, ये hollow spaces को आप collectively बोलते हो ventricles. ventricles, ठीक है. हमारे पास अलग अलग ventricles है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव, मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ. सेरिब्रम के अंदर बाजू बाजू में 2 ventricles है, नाम पड़ गया लैटरल वेंट्रिकल. ठीक है, दोनों बाजू बाजू में लैटरल वेंट्रिकल. ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल के जस्ट नीचे यू हैव द थर्ड वेंट्रिकल, which is called as metacele, and then you have the fourth ventricle, which is called as diocele. Okay, so you have the lateral ventricle, then you have the third ventricle, and you have the fourth ventricle. Now I want you to look at the diagram carefully guys. ठीक है, जरा डायग्राम को केयरफुली देखिए कि आपके पास एक तो सेरिब्रम है जिसके पैरेलली आपके लैटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल जिसको डायोसील बोला गया है, एंड फोर्थ वेंट्रिकल जिसको आपने बोला है मेटासील. ओके, सो दिस इज थर्ड वेंट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नाम आपके रेफरेंस के लिए. थर्ड वेंट्रिकल जो होता है इट इज डायोसील. ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल जो है इट इज कॉल्ड एज मेटासील. फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स है उसको बोलेंगे लैटरल वेंट्रिकल. ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. लैटरल वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विद द थर्ड वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ चैनल व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और आल्सो कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मोनरो, कनेक्शन पॉइंट. Third ventricle is connected to the fourth ventricle with the help of another tube duct which is called as cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvius. Fourth ventricle से the entire it will lead to the next duct which is called as central canal which will enter into the spinal cord. ठीक है, तो मतलब क्या भाई, इस इन्हीं सारी के सारे वेंट्रिकल्स में है क्या, ऑल द वेंट्रिकल्स कंटेन सीएसएफ होता है, और ये सीएसएफ पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और न्यूट्रिशन एंड शॉक एब्जॉर्प्शन जो मैंने फंक्शन आपको मेंशन करे वो सारे के सारे फंक्शन वो परफॉर्म करता है. पहले 2 वेंट्रिकल्स का नाम लैटरल, देन यू हैव डायोसील, देन यू हैव मेटासील. So diocele and lateral ventricle connected by interventricular foramen, also called as foramen of Monro. Third ventricle to fourth ventricle with the help of cerebral aqueduct, also called as aqueduct of Sylvius. ये नाम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, चिंता करने की कोई गरज नहीं है. क्या रहेगा अंदर, CSF. ठीक है,
ये छोटा सा पार्ट था, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए। सो ये एग्जैक्ट डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, अपन ने आज क्या क्या भैया देखा? अपन ने क्या क्या देखा भाई? अपन ने बहुत कुछ देख लिया आज, पूरा ब्रेन एक्चुअली खत्म कर दिया है हम लोगों ने। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन देख लिया, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स कर लिए, ब्रेन कर लिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड, तीनों खत्म कर दिया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बच जाता है जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए रहेगा। विल फिनिश द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट मॉड्यूल में अपन स्पाइनल कॉर्ड भी खत्म कर देंगे। विल आल्सो फिनिश पीएनएस, वी आल्सो विल फिनिश एएनएस। ये तीनों सिस्टम्स को कंबाइन करके एक मॉड्यूल में डाल देंगे, फिर पूरा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक बार नर्वस सिस्टम खत्म, फिर सेंसरी ऑर्गन, रिसेप्टर्स एंड वो सारे चीजों पे, फिर वो न्यूरल खत्म, एंड देन विल टेक अ हार्मोनल। ठीक है, सो चैप्टर काफी बड़ा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर रहा हूँ, ओनली फॉर योर बेनिफिट। ओके, सो इफ एट ऑल अगर बाई चांस कुछ डाउट्स आते हैं मॉड्यूल्स में, इस मॉड्यूल में या प्रीवियस मॉड्यूल में, कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स आते हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट डाउन, आस्क द डाउट्स एज मच एज पॉसिबल। बिकॉज देखो, एट द एंड ऑफ द डे क्लैरिटी आपको चाहिए ना, एग्जाम तो आपको देना है, तो क्लैरिटी भी आपको ही लगेगा। सो बेटर रहेगा कि आप क्लियर करें डाउट्स, डायरेक्ट मगअप ना करें, रोट लर्निंग ना करें, समझ समझ के करिए, नोट्स इसको जरा बनाइए ताकि आपके रेफरेंस के लिए बेटर रहेगा। एंड ऑल्सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर रियली लाइकिंग द कॉन्टेंट दैट वी आर रियली प्रेजेंटिंग ऑन this channel, I would really appreciate you. Please subscribe to our YouTube channel, which is YSR Academy. If you like the video, please give it a thumbs up. Comment down on the comment section. If you have any kind of positive or any kind of feedback that you would want to share with us, also please share it with your friends, even so they get benefited. We are actually delivering the entire coursework of 12th State Board Maharashtra for physics, chemistry, mathematics, and biology, and also geography students. So recent uploads of all the faculties are there on the YouTube channel. I would highly request and recommend you, please visit them once. You'll really love it. I'm very, very sure about it. And if you like our content, please do not forget to subscribe to our channel. So with this, I think this module should come to an end because it's pretty lengthy, and I think so one of the biggest modules from my side. But again, I wanted to finish it in one go. So एक brain पूरा एक ही में combine करना था मुझे, which I did. Please watch it in parts. Also, if you have doubts, please rewind. नहीं समझ में आ रहा, comments में comment down कीजिए. I'll see you in the next module. Till then, take care and stay safe.